स्टार्ट हो गया। बताइएगा। हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज गवर्नेंस. Governance, whatever government does, good or bad, governance. For time being, for you guys, whatever government does is governance. Now, this topic is included in GS paper 2. What are the constituent of GS paper 2? Polity, constitution, governance, social justice and IR. What are those constituents? क्या क्या है? Polity, constitution, governance, social justice and IR. And we will be dealing with governance in next 15 days. In next 15 days, we will be dealing with this governance portion. GS paper 2, governance. Now, look at these two images. Sir, what is your name? Chandrasekhar. Can you decipher what do you mean by this image? Like what you can decipher from this image? Chandrasekhar? Anyone else? Exploiting poor. Sir, what is your name? Durga Prasad. One rank 201. One of our student, Durga Prasad Adhikari. Philosophy optional. Okay, so what can you decipher from this image? Sir, Chandrasekhar, now you have deciphered. Please tell. कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, इतना तो फारसी में तो नहीं लिखा है, सिंपल कार्टून. So here we are, it is very clearly visible that these politicians, Durga Prasad, you want to say? No, please, this is your platform, please. But politicians are running the government and how they using their policy and implementation on the common people, that is showing in that image how they contributed to the. Very good, Durga Prasad. You have clearly defined whatever this image is deciphering. And now this politician is churning the common man's blood. Whatever taxpayers' money, like they are misusing, they are doing corruption in various forms, right? And fulfilling their own interest. Ma'am, what is your name? Mamita. Mamita, what can you decipher from second image? Is it visible, ma'am? Amita, please tell. This image. Using public funds for themselves. Misusing the public funds for themselves. This is called as systemic corruption. At each and every level, they are doing corruption. They are misutilizing the funds. At each and every stage, they are misutilizing the fund. This is called as corruption of value system, and World Bank in its report that governance in sub-Saharan Africa, World Bank report on sub-Saharan Africa 1989, they mentioned this as crisis of governance for the very first time. For the very first time, the governance word from there, World Bank on sub-Saharan Africa 1989, and even in our country as well. Right? In our country as well, what we are seeing, that lot of corruption is there. Even we can take the example from corruption perception index. You guys have completed ethics? Ethics you have completed? Okay. So we will establish the context from there and then we will maintain this beautiful flow. Now, how many of you read newspaper? Sir, you read newspaper? Not regularly. So, all of you, how many of you are reading newspaper? कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, चलो कुछ लोग तो सीरियस
है, ये मान सकते हैं. So many times you find that this officer or that officer has been charged in the corruption charges. है ना दुर्गा? You hear about all these news, right? So 2 weeks before, there was news regarding 2 IAS officers had been charged in the corruption charges, and they were taking only 10,000 rupees. They have taken bribe of rupees 10,000. Only 10,000 तक करप्शन किया है IAS ऑफिसर्स ने. They should learn from our धीरज साहू. धीरज साहू, have you heard of this news? Approximately 300 crore of corruption. 300 crore of corruption, and this IT department, what they are saying, that highest ever IT seizure, the cash, 290 crore in cash. This means, how many of you think that you have never taken corruption in your lifetime? Sir, what is your name? Have you not taken corruption in your lifetime? अभी तक लिया है. कोई इंसिडेंट कोई शेयर कर सकते हैं? Okay. So, and anyone else? Sir, at the last, am I audible to you? तो क्या कभी करप्शन लिया आपने? कभी तो भ्रष्टाचार किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं. किया है? So very honestly, what is your name, sir? Somit is a very honest person. At least he is knowing कि सर मैंने तो किया है सर. But how many of you think after covering ethics syllabus that कि सर जब मैं सिस्टम में जाऊंगा ना तो I will not do corruption, or you think like this कि सर एक बार सिस्टम में आने दीजिए, I will drain the rivers of money, पैसों की तो नदियां बहा देंगे. How many of you think like that? Please come. How many of you think like that? Sir, in which खेमा you are, मतलब किस जगह पे हो आप कि कभी करप्शन करोगे ही नहीं, कि जाएंगे तो बस पैसों की नदियां बहाएंगे? हाँ, बैलेंस करना पड़ेगा. So you guys have studied ethics, and this paper was included in 2013. Why they have included this paper? Sir, what is your name? Huh? Pratik, why do you think this ethics paper was included? Very good, Pratik. Between 2000 and 2010, various committees, even UPSC sent many reports. Various government committees sent reports to government citing that officers, those are selected by this UPSC, are good in various dimensions. But they are weak in administrative ethics. As far as administrative ethics is concerned, they are found weak. So my next question to you guys is, then what is ethics that they have included this paper? ये ethics क्या है? मैम आपका नाम क्या है? मैम प्लीज बताइए कि क्या है ethics? You have studied this? When society thinks morally. Okay, fair enough. Sir, what is your name, sir? अतिंद्र के पीछे संजय जी बताएंगे what is ethics. Have you completed ethics, Sanjay? Okay, so what is ethics? At very last, new guy. Hi, what is ethics? Okay, fair enough. So ethics is normative science. But before we understand normative science, we should know what is science. Ma'am, what is your name? What is science? Ankita. Science is Ankita. Okay. So what is science, Ankita? What is science? It is well organized study of particular field of subject. It is well organized study of particular field of subject. So the science, this science can be divided into normative
प्लस डिस्क्रिप्टिव। अब आप लोग बताएंगे कि नॉर्मेटिव क्या है और डिस्क्रिप्टिव क्या है। नॉर्मेटिव साइंस एंड डिस्क्रिप्टिव साइंस, एनीवन? तो डिस्क्रिप्टिव साइंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने। एनीवन एल्स? The normative science is that what we should do. Very good. And What is your name, sir? Okay, Swastik. Very good. And what is descriptive science? what it is really. Okay, very good. So in normative science, what is normative science? कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। In science we study well organized study of particular field of subject. In ethics we are saying that it is a normative science कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव साइंस? कि क्या है, जो जैसा है उसका वैसा ही वर्णन। डिस्क्रिप्टिव साइंस, जो जैसा दिख रहा है उसका वैसा ही वर्णन। फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचुरल इवेंट्स, वी स्टडी अबाउट नेचुरल इवेंट। जो जैसा हो रहा है कि भाई दौड़ रहा है तो इट इज अ फिजिक्स, राइट। केमिस्ट्री वी आर स्टडिंग अबाउट केमिकल्स, जो जैसा केमिकल है उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, करेक्ट। बट इन नॉर्मेटिव साइंस व्हाट वी स्टडी सर, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो इन एथिक्स, एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस वेयर वी स्टडी ह्यूमन कंडक्ट, कि मानव के आचरण, ह्यूमन कंडक्ट, मानव के आचरण क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि एथिक्स इज, मैम एथिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस वेयर वी स्टडी ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट। इट टेल्स अस, नॉलेज ऑफ एथिक्स टेल्स अस व्हाट वी शुड डू, सर हाय, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट इन ऑर्डर टू अचीव समम गुणम, इन ऑर्डर टू अचीव समम गुणम। अब ये क्या चीज है समम गुणम? वेरी गुड सर, क्या नाम है आपका? ओके, वेरी गुड सर। So ultimate objective in case of Buddhism is nirvana, in case of Jainism is kaivalya, in case of Hinduism is moksha, right? So ethics is a normative science where we study human conduct, and knowledge of ethics tells us what we should do and what we should not in order to achieve samam bonam. But samam bonam, this is a keyword. You have to use it in your mains paper. Samam bonum, in case of governance, is welfare of society, welfare of citizens, right? Welfare of citizens, welfare of society. When the same question was asked in Bhagavad Gita from Lord Krishna, कि प्रभु what we should do and what we should not, he told, सर क्या कहते हैं वो, कि आत्मनः प्रतिकूलानि, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरित, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरित। डू नॉट डू unto others as you would not be done by, ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो खुद की आत्मा के लिए दुखदाई हो। डू नॉट डू unto others as you would not be done by. Now the similar question was asked from Maharishi Vedvyasa also. Maharishi Vedvyasa also. And he was asked, Prabhu, you have done lot of research, you have written, you are a compiler of Vedas, you have written 18 Puranas. According to you, what we should not do? हमें क्या नहीं करना चाहिए? He told that paropkaraय punyāय. Please listen very carefully, because in one of the essays you will make this line your conclusion, and I bet you. Now see what he told. Paropkaraय punyāय papāय parpīdanam. Paropkaraय punyāय papāय parpīdanam. We should always do good to others. We should always do good to others. We should help others. It will bring us religious merit. पुण्य मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी. But if you will provide hatred, if you will not serve others, you are deceiving others, right? So because of that you will get
रिलीजियस इल ओमेन, पाप की प्राप्ति होगी, राइट, पाप मिलेगा, राइट. सो सिमिलरली ऑल दीज पॉलिटिशियंस डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड गवर्नेंस, कि भाई अगर सर्विस में गए हैं, है ना, दिस ब्यूरोक्रेट्स, दिस पॉलिटिशियंस, if you are holding some position of power, what you should do, you should always do good to others, correct. किसी को डाउट है यहां तक कि we should always do good to others, we should always do our duty, right. So in this topic till now we have understood कि we have beautifully contextualized the thing कि we have started with corruption. Now we are establishing what ethics is, why ethics has been included in our syllabus, and according to ethics what we should do and what we should not. Let us revise. What is ethics, ma'am? Ethics, very good. Ethics is a normative science where we study, sir, where we study, Durga has said very nicely, human conduct. The study, knowledge of ethics gives us knowledge of what we should and what we should not, in order to achieve summum bonum. Summum bonum in case of Jainism is kaivalya, in case of Buddhism is nirvana, in case of moksha in Hinduism is, and in case of governance it is welfare of citizens. Very good. So right now, and after that, ये क्या हो गया, हाँ, okay. So now if we see the UPSC trends, we find out that number of questions from governance portion has been on an average 4 questions are asked from GS paper 2. GS paper 2 से 4 questions तो पूछते हैं. For example, if we see in 2013 it was 5 question, 14 6 question, 15 4 question, 16 5, 17 5, 18 3, 19 6 questions, 2020 2 questions, 2021 5, 2022 4, and 2023 4 questions. So on an average 4 questions are asked. But sir and ma'am, if the kind of syllabus in the UPSC for governance is such that it provides base for all other topics, it is like those NCERTs, right? It provides base for all other topics. For example, social issues, for example, polity and constitution, because in all other aspects, you will be talking about what government is doing in economic aspect, in social aspect, right? This topic provides base for all other topics. So on an average, if you will see, approximately 150 to 200 marks in mains, that is the weightage of this subject. If you have done this paper very well, you will be easily handling and grabbing 150 to 200 marks. And in prelims, because the kind of questions with changing UPSC paradigm, we have seen that UPSC is asking on more upon practicality of the subject, correct? Practicality of the subject. They are asking on the practicality of the subject, right? So there also 8 to 10 questions are asked, and I have given 2 interviews. In one of the interviews I got 161, and in next interview I got 181, right? And in both of those interviews, most of the questions were from governance portion. And I bet you कि अगर आप जाते हो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और वहां पर क्या होगा कि गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही क्वेश्चंस होंगे, राइट? Those ethical aspect, governance aspect, those things will be, those case study aspect, they will be asked in the interview. So be satisfied कि अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है तो in interview you will be acing, right? Now this is a general syllabus, don't worry, we will be writing this, है ना, परेशानी होना, we will be writing this, but just let's have a glimpse of it कि क्या है एक्चुअली में क्या है. फिर then we will break it down. The syllabus is important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, citizen charter. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पहले कहीं पढ़ा है क्या?
कहां पर पढ़ा है? वेरी गुड. इन विच यूनिट? Probity in governance. Probity in governance. Perfect. So this topic has been repeated. We will do in a very nice manner. And then role of civil services in a democracy and developmental process and development industry. For example, NGO, SHG and civil society organizations. For example, charities, institutionals and other stakeholders. We will be talking about them. And we will be seeing also when we are breaking the topics, all these topics. But what will be the sources for them? See, I've been doing this for multiple years and I'm always telling to students that whatever you are writing in your class notes and whatever you are doing in classes, it is more than sufficient, right? और क्वेश्चन यहीं से आएगा. We will see the testimonials as well. ये क्वेश्चन यहीं से आता है. परेशान होने की जरूरत नहीं है because you are studying from best of the faculties from Delhi. So you should be grateful about that कि हर चीज आपको अपनी कॉपी में मिलेगी, है ना? But the most important thing is you will have content map. You will have content. But most of the time people lack intent. Content तो होता है, intent ही नहीं है करने का, right? So class notes we will be doing law sessions, live answer writing sessions. यहीं पर बैठ के लिखेंगे और those law sessions are very very benefitable. Right? Those law sessions are very beneficial. And current affair that you have to do, we will be doing also. And second ARC reports that is already included. कुछ लोग कहते हैं बार बार बोलने के बाद भी कि सर और क्या कर लें, और क्या कर लें सर, कुछ और कर सकते हैं क्या? Then I tell them कि these are reports. First report, right to information. Second report, unlocking human capital. Fourth report, ethics in governance. Sixth report, local governance. Ninth report, social capital. 11th report, promoting e-governance. All these reports are there and there are approximately 400 pages in each report. You go through them if you have plenty of time, but we will be already including this in our classes. Don't worry about them. मैं कह रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि सही सर कुछ तो करेंगे, इतना फ्री टाइम है हमारे पास, हमको तो करना है. So already included in the class. Now before studying governance, this is your position. कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, right? But after studying governance, you will be like this कि you become very very knowledgeable person कि चीजें क्या चल रही है. Now you started having the knack of it, or it is not only benefitable for you in entering into the services, but also after going to Labasna. लबासना मैम, लबासना क्या है? ये क्या बवाल चीज है लबासना? लाल बहादुर शास्त्री, आगे एनीवन एल्स? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. वेरी गुड. लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. यू विल बी गोइंग देयर फॉर योर फाउंडेशनल कोर्स ट्रेनिंग. फाउंडेशनल कोर्स की ट्रेनिंग होती है. एंड आफ्टर 4 months जब आप वहां पर बिता देंगे तो यू विल हैव वन पेपर ऑन दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. एक पेपर होगा, एक टेस्ट होता है वहां पर भी, तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगा कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट 15 days, द सिमिलर सिलेबस इज देयर, वही सेम सिलेबस है, तो वहां पर भी हेल्प करने वाला है. एंड व्हेन यू विल बी इंटरिंग इनटू द सर्विसेज in the administrative field, you will be understanding about what are the issues of different initiative, different programs, and what are the problems in them. Problem जानोगे तभी तो उसको rectify कर पाओगे, right? And then you will suggest reforms because you have already studied them, right? So you will study about all these government initiative कि policy में क्या problem है and how you can rectify that. You will get knack of that. Perfect. So it is not only benefiting before Lavasana, but in Lavasana and after Lavasana, like when you are entering into the administrative field. Correct? Now these are various testimonials for you because we are meeting for the first time and we should know ki whom you are studying. So just to have a trust, because this is very important exercise for any policy also. अगर trust नहीं होगा तो क्या implement होती है क्या अच्छे से? नहीं होती है. बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हैं. वी विल सी कि बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज हैं. These bureaucrats are geniuses.
लेकिन तब भी वो इफेक्टिव नहीं है ग्राउंड पे, राइट? वी हैव 270 मिलियन पीपल लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ स्कीम। कुछ तो रीजन होगा ना भाई, है ना, कुछ तो रीजन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर स्टूडेंट सर, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, आई एम योर स्टूडेंट। आपके नोट से सारे क्वेश्चंस आ गए एंड इट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर क्लास नोट्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज द मदर संध्या राजपूत, माय सन इज योर स्टूडेंट, आपकी बहुत तारीफ करता है एंड ऑल दोज कमेंट्स। नाउ आई वांटेड टू शो यू सम ऑफ द लाइक दिस लॉस्ट सेशन के बारे में। आई वांटेड टू शो यू दिस लॉस्ट सेशन। These things are already available in the YouTube. I have already done that with lot of explanations कि कैसे कैसे हमारे नोट से ही क्वेश्चंस आए। तो you should believe in that aspect कि अगर यहां पर पढ़ रहे हैं तो you have to trust in this कि अगर सर के क्लास नोट्स कर लिए, प्रैक्टिस कर लिया, मैम प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, करंट अफेयर कर लिया, so it is done for the mains। फिर रिवीजन करना है, करेक्ट, फिर रिवाइज करना है। So these are multiple testimonials. These are questions which have been come directly from our class notes. So it is just, but how to make notes? Ma'am, can I get your copy? How to make notes from now onwards? Ma'am, please have it. मुझे जरूरत नहीं है। So अब ये क्या है? एक पेज है, right? इसमें क्या करना है? 1/3 तो पता होता है, CSAT, बेसिक 3SAT कि इसको आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 1/3 यहां कहीं आएगा। इतना पोर्शन में एक लाइन खींचनी है, ये वाला पेज आपको वेकेंट रखना है। वी विल कीप दिस पोर्शन वेकेंट। इसका पर्पस है, द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज दैट वी आर स्टडिंग लॉट ऑफ कंटेंट, वी आर स्टडिंग लॉट ऑफ कंटेंट एंड बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं। वी कीप ऑन रिवाइजिंग, वी आर अंडरलाइनिंग अवर कीवर्ड्स, है ना। एंड द बेसिक प्रॉब्लम विद जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4, देखो कोई नहीं बताता, इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आपको वहां पर जाके, राइट, जीएस पेपर 2 कब होगा? इन आफ्टरनून। फर्स्ट डे यू विल बी गिविंग एसे, नेक्स्ट डे जीएस पेपर 1 9 to 12 एंड 2 to 5 जीएस पेपर 2, नेक्स्ट डे जीएस पेपर 3 एंड 2 to 5 जीएस पेपर 4। जब जीएस पेपर 2 देते हैं तो मेंटली और फिजिकली आप यू आर टायर्ड, नथिंग कम्स आउट, है ना। और मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट दे डू, दे वेस्ट टाइम कि जाते हैं यहां बात करते हैं, चिट चाट करते हैं, है ना। सो अगर आपने ये नोट्स लिख लिया है तो इट विल हेल्प यू इन वैल्यू एडिशन। यू हैव ऑलरेडी अंडरलाइन ऑल दोस कीवर्ड्स कि आपको पता है कि पीवाईक्यू से कहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। सब कीवर्ड्स आप एक्सट्रैक्ट करके यहां पर लिखने वाले हैं जब प्रीलिम्स हो जाएगा, है ना। एक लास्ट टाइम जब आप करने जाते हो तो वहां पर करेंगे, सारे कीवर्ड्स लिखेंगे एंड एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर बिटवीन लाइक 12 to 12:30 you will be having like approximately you will have half and 45 minutes, half hour 45 minutes for your lunch, and after that you will have half an hour 45 minutes again to revise the content, and trust me you have to revise क्योंकि सारी चीजें भूलती जाती लगती हैं, है ना। and if you want to, क्योंकि पता तो सब कुछ है, प्रैक्टिस तो सब कुछ किया है, लेकिन अगर वहां पर उतार के नहीं आए, है ना, एग्जामिनर आपको उस कॉपी से जज करेगा। वो नहीं जानता कि चंद्रशेखर कौन है, वो नहीं जानता कि दुर्गा कौन है, ममिता कौन है, कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो नहीं जानता, वो आपकी कॉपी से जज करने वाला है, राइट। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट वॉर, उस वॉर के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग योर साइकोलॉजी शुड बी कि 1/3 पोर्शन हमको छोड़ना है और 2/3 पोर्शन में अपने नोट्स बनाएंगे। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया मैम? वेरी इजी, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, नाउ so what we have understood कि class notes, current affair and these lost sessions, PYQs अगर प्रैक्टिस करनी है तो PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी लॉस्ट सेशन में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वही प्रैक्टिस करेंगे, उनको बार बार करना है। अब आप यू डू नॉट गो फॉर सर्चिंग फॉर टू मेनी रिसोर्सेज, योर सर्च एंड्स हियर। अब ये क्लासेस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट योर पायलट एंड I'm telling you again, I am not giving you a lot of PDFs, right? And I do not want you to make PDF collector, right? कि आप बहुत सारे PDF निकाल के लेके आए और you are satisfied by your own, you are becoming PDF collector. I want you to become original collector, not PDF collector.
Perfect. And you have to trust in your pilot. Trust is very important thing, because Krishna says in Bhagavad Gita that Nayam lokasti na paro na sukham sanshayatmana. Nayam lokasti na paro na sukham sanshayatmana. That means sanshay, for a doubting soul, there is no happiness neither in this world nor in the other. होता है कि नहीं? कितनी सही बात कही कृष्णा ने, है ना? तो अब फोकस होकर पढ़ाई करनी है, ट्रस्ट करना है और चीजें हो जाएंगी। लेकिन मेहनत तो करोगे तब तो होगा, है ना? अगर सिर्फ डाउटिंग करते रहोगे, फ्लिकरिंग माइंड के साथ करोगे, अगर आपका माइंड फोकस नहीं है तो क्या करोगे? यहां भी पढ़ लेते हैं, वहां भी पढ़ लेते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। क्योंकि कृष्णा इज वेरी टू द पॉइंट। क्या कहते हैं वो? नायम लोकास्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विद दिस बेसिक कॉन्टेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड, we will move forward. But before we enter into our subject matter, we will see what are the crimes in the UPSC. See, last year one of my student, rank 601, she committed a, sorry, last to last year, she committed a crime of writing poem in essay in Hindi language, in Hindi. She was an English medium student और उसने एक पोयम थी कि जब एटीट्यूड चेंज पे एक पोयम होता है, मतलब एक ऐसे तो होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम एटीट्यूड चेंज पे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एटीट्यूड, है ना? सो वन ऑफ द एसेज वाज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड शी रोट वन पोयम इन हिंदी लैंग्वेज, लाइक जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तब धार क्या बस धार क्या। He wrote this like this. I hope you have got this. कि जब ऐसा लिखा उन्होंने। She was English medium student. Perfect. And 15 marks have been deducted from her copy. When she came after giving the examination and she called कि सर ये गलती हो गई। So before that I was not doing all of these things. मैं बताने पे just telling whatever the content of the subject is and we are okay with that. But after that I started doing this because when the mark sheet came I had an excruciating pain कि बताओ एक ऐसी गलती के कारण उनके -15 मार्क्स हो गए। Do you know there is a penalty marking in the UPSC examination? Yes. So there are crimes mentioned by UPSC, crimes in the UPSC कि वो क्राइम तो कभी करना ही नहीं है, पहले ही ये जानना है और समझना है। अदरवाइज लेटर ऑन क्या प्रैक्टिस करते गए एंड वी विल सी कि लोग कैसा करते हैं। दीज आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए, है ना? सो वी विल सी दैट। सो यूपीएससी टू ऑल ऑफ अस, अगर इफ इट इज विजुअल, कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ। डू नॉट राइट बियॉन्ड मार्जिन, डू नॉट राइट। फर्स्ट ऑफ द थिंग इज कि आपको मार्जिन, जो मार्जिन है ना, हम लोग यहां पर बना रहे हैं एंड इवन इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो देयर विल बी मार्जिन इन द कॉपी, उसके बियॉन्ड आपको नहीं लिखना है कभी, राइट? एंड देन दीज आर सम ऑफ द टेस्टिमोनियल्स ऑफ पेनाल्टी कि यहां -5, -25, है ना? उस लड़की को क्या मिला? IAS मिला, राइट? And she could have got IPS very easily and it was her dream service. और -25 में तो पता नहीं क्या हो जाता है ना, आपकी रैंक कहां चली जाती है। तो सी पेनल्टी मार्क्स 25 मार्क्स। तो UPSC to mains student, do not commit these kind of crimes. Before studying anything you have to study this because this is urgency for you people, क्योंकि जानते ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है और आप ऐसे ही लिख के चले जाते हो, है ना? तो नहीं तो क्या होगा? तो दिस विल हैपन टू यू ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ होता है। सो यू विल ऑल्सो फेस सेम। सो यू डू नॉट हैव टू कमिट ऑल दीज क्राइम्स। फर्स्ट इज दिस irrelevant matters written in question cum answer booklet, and most of the student what they do, they write some religious symbols, religious numbers, for example 786, for example this cross,
है ना, इसके माइनस मार्किंग है ऑलरेडी मेंशन इन द यूपीएससी, दे हैव क्लियरली डिफाइंड इन देयर वेबसाइट। तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत फियर होता है कि बस क्या पता इसी क्रॉस से ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमारे अंदर तो वो बिलीफ सिस्टम है ना, वी आर सोशलाइज्ड इन सच अ वे कि क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए, भगवान लक फेवर करे तो मेरे फेवर में ही हो जाए, राइट। एंड देन जाओ, सो हरे कृष्णा हरे राम, एंड देन दिस ओम इन द सेंटर, लाइक कि वहां पर लिखने पे पता नहीं चलेगा, यहां पर दिखेगा सामने, ओम गणेशाय नमः, बिकॉज वी आर बिगिनिंग समथिंग न्यू, so in our Hindu philosophy we have to say this Om Ganeshaya Namah, we have to worship Bhagwan Ganesh, God Ganesh, and most of the toppers also have this habit of writing here like 10 45, these are minutes, है ना। ऐसा करते हैं वो कि 10 मिनट में इतना लिख लूंगा, 45 मिनट में मैं इतना लिख पाऊंगा, 60 मिनट मतलब कि 60 सेकंड्स में मैं इतना लिखूंगा, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो दे डू सच काइंड ऑफ मार्किंग फॉर फुलफिलिंग देयर टाइम लिमिट्स, है ना, कि टाइम लिमिट के भीतर मुझे अगर लिखना होगा तो व्हाट आई विल डू, तो इनिशियल दे विल डू, बट इन द एग्जामिनेशन आल्सो दे आर स्टार्ट डूइंग दिस। तो यूपीएससी ने कहा है कि ये सब मत करो, डोंट डू दिस, दीज आर क्राइम्स फॉर मी, दीज आर इंडिकेशंस फॉर मी कि दैट यू आर इंडिकेटिंग मी टू गिव मी गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल टाइम 10 बजे शुरू करूंगा एंड 10:25 पे खत्म करूंगा, ऑल दीज थिंग्स, राइट। यू डोंट हैव टू डू दिस, ये सब नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हियर 10:25 दिस साइड और दिस साइड, योर नेम एनीवेयर इन कॉपी, यू डोंट हैव टू मेंशन योर नेम, कहीं पर भी अपना नाम मेंशन नहीं करना है ना, कि नाम बहुत ही अच्छा है मेरा, मेंशन ही कर देते हैं, क्या पता उसी से ही मार्क्स आ जाएं। नहीं होता ऐसा, रोल नंबर या फिर कोई तरीके का नंबर भी नहीं लिखना है, डोंट हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। एंड देन नंबर है लिख दिया और क्रॉस ऐसे किया है कि जैसे इट इज क्लियरली विजिबल टू अस, क्या नंबर है मैम, इट इज क्लियरली विजिबल, है ना। तो अब ये सारी गलतियां भी नहीं करना है कि अरे मुझको तो भूल के मैंने कर दिया, है ना, वो भी इंडिकेशन नहीं देना है। नाउ विनीत, you have written your name and crossed it, you don't have to do this, right? Then in language paper there is a letter writing as well, so वहां पर आप साइन नहीं करेंगे, अपने नाम की साइन करके चले आए, that you own big properties, and for example Vinesh Kumar, name of the candidate has been written and signature has been put here, right? For example कि your address, it seems that you are alluring examiner कि सर आप भी करोल बाग में अगर रहते हो, मैं भी आपके बगल का ही हूं ना, प्लीज चेक दिस कॉपी वेरी लीनियंटली, मैं भी बगल से ही आ रहा हूं, आपका पड़ोसी ही तो हूं, सो यू डोंट हैव टू कमिट दिस मिस्टेक एंड दिस क्राइम, कि हाफ आंसर इन इंग्लिश एंड हाफ आंसर इन हिंदी लैंग्वेज, ये नहीं करेंगे। आप इंग्लिश मीडियम के, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस स्टोरी, रैंक 601 स्टोरी, कि ऐसे पोयम में उन्होंने हिंदी में लिख दिया और उनके मार्क्स डिडक्ट हुए। एंड आंसरिंग पार्शली इन इंक एंड पार्शली इन पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम एज वेल, इन ज्योग्राफी पेपर, इवन इन द इंटरनेशनल रिलेशन, वी टेंड टू मेक आवर लाइक मैप्स विथ पेंसिल, ऐसा होता है कि नहीं? प्रैक्टिस दिस विथ योर पेन, पेंसिल से नहीं करना है ना। यू आर इंडिकेटिंग दैट कि अगर मैंने कुछ गलत बना रहे हैं, वो यूपीएससी का माइंडसेट ऐसा है, अगर मैंने कुछ गलत बना भी दिया है तो आप अपना रबर लेके मिटाइए और अपना अच्छे से डायग्राम बना के फिर मार्क्स दीजिए, ये आपको नहीं करना है ना, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, नॉट इवन मैप्स, नॉट इवन लाइक इन योर एनी आंसर बुकलेट, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, you will not write partially in pencil and partially in pen. So direct and indirect appeal to the examiner, this is very normal कि madam and sir please this is my last attempt, please examine this leniently। ये होता है जब लास्ट अटेम्प्ट में, अभी तो हम लोग को हंसी आ रही है, लेकिन जब लास्ट अटेम्प्ट होगा
और हो सकता है जैसे मैंने देखा इस बार कि वन ऑफ द लाइक आर्मी ऑफिसर वाज देयर एंड ही टुक out some time for preparing for UPSC examination and it was his last attempt. But at that point of time in Delhi there was dengue फैला हुआ था हर जगह. जब उन्होंने पेपर फोड़ दिया तो उनको डेंगू हो गया. फिर लगेगा ना यार कि लास्ट अटेम्प्ट था, लिख देते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए. लेकिन क्राइम ये करना नहीं है, अदरवाइज मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, दे विल बी डिडक्टेड बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी मेंशन्ड वेरी वेरी क्लियरली, है ना. यूपीएससी बोलता है मैंने थोड़ी डेंगू फैलाया था, है ना. सर एंड मैडम, मेरा यह अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें. सहानुभूति पूर्वक, सिंपैथेटिकली, सिंपैथी और इंपैथी, इसको लिखना चाहिए था कि कंपैशनेट वे में, है ना. कंपैशनेट वे में आपको काम करना है. सिंपैथेटिकली मतलब क्या होता है? यू आर हियरिंग हिज प्रॉब्लम बट नॉट अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, राइट. एटलीस्ट लिखता इंपैथेटिकली. अगर नॉलेज होता तो लगता कम से कम कि हाँ चलो वो जो दर्द मुझे हो रहा है वही दर्द आपको भी हो. सर एंड मैडम, मैं आपसे विनती करता हूं कि उत्तरों की जांच सहानुभूति पूर्वक की जाए. एंड दिस आइंस्टीन लैंग्वेज, अगर ये लैंग्वेज आपने लिखा है, मे बी यू हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर, बट इफ यूपीएससी एग्जामिनर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो हो सकता है कि आपको वो डॉक्टर कंसीडर कर ले. लेकिन डॉक्टर कंसीडर करेगा भी तो मार्क्स नहीं देगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया. तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन ऐसी हैंडराइटिंग इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है, लिख रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है. एंड देन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज रैंक 13 ने गलती करी थी इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, और 2017 टॉपर रैंक 13. So he committed this mistake. I am forgetting the year, exact year, but he committed this mistake. He mentioned in one of his one of the lectures कि उसने ऐसी गलती करी कि like his answer was ended in the last page only. मतलब it has to end in the last page. But उसको कुछ और लिखना था, कुछ चीजें वो भूल गया था, and next question उसको बन नहीं रहा था. He was not knowing next question. तो उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को काटा और जो पुराना वाला क्वेश्चन टू बी कंटिन्यूड करके उसको फुलफिल किया. यहां पर उसने कंप्लीट किया, है ना. जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसी स्पेस में लिखना है, ये गलती नहीं करना है. उस ईयर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर उनका रैंक 13 आया. एक आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं. तो इट इज अ ह्यूज थिंग. ये आपको गलती नहीं करनी है कि पुराना क्वेश्चन जितना भी स्पेस मिला है उसी में एंड करिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी स्पेस वहां पर दिया गया उसी स्पेस में आपको लिखना है, राइट. इज इट क्लियर. और ये कारीगरी, दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस डायग्राम, दिस डिजाइंस, अगर आपके पास इतना फ्री टाइम है तो यूपीएससी टेल्स यू कि आप यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, है ना. इतना फ्री टाइम है, आप रफ पेज में या फिर जो क्लास के पेज में आप डायग्राम बनाना लग गए तो अपने पेपर में क्या लिखा होगा. ये सब गलतियां तो नहीं करना. ऑल्दो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, बट यूपीएससी हैज मेंशन्ड दिस कि डोंट डू दिस because it is an indication to the UPSC examiner if there is any symbol, any signs, so they consider is a crime, they consider as crime, right. So irrelevant sketches, and what is the right thing. और मैं बता रहा हूं ये इवन जो वहां पर एग्जाम लेने वाले होते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, जो डिक्टेट करते हैं कि ऐसा करो, वहां पर भी वो लोग गलत बता देते हैं. बिकॉज इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2022. This you have to write. Medium of examination English and your roll number like this. There in one of the student told कि सर मुझे तो ये बोला गया कि यूपीएससी एग्जाम लिख दो ना. वो सब नहीं लिखना है, जो यूपीएससी ने मेंशन किया है वही लिखना है. क्या मेंशन किया है? सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2024 या 2025, जो भी आप देंगे, है ना, वॉट एवर यू आर गिविंग. तो दिस type of like question come answer booklet you have to fill like this, right. And you don't have to commit any crime. And और जो एग्जामिनर अगर कह भी रहा है वहां पर जो है अटेंटिवली जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि ये लिख दो वो लिख दो, आपको तो पता है ना यार,
You already know that. These are already guidelines from the UPSC. तो आप instead of asking from him कि वो तो उनको पता ही नहीं है, वो तो खुद टीचर है ना, जो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जो खड़े होते हैं वो तो कुछ होगा नहीं, वो तो टीचर ही होंगे, नॉर्मल टीचर होंगे, शायद वो प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हो, उनको थोड़ी पता होगा, उनकी गलती थोड़ी है, बट यू नो दैट. तो ये क्राइम्स आपको नहीं करने हैं. कैंसिल करना है तो इस तरीके से कैंसिल करना है कि जैसे कैंसिल चेक करते हैं, है ना, कि 2 लाइन खींचा बीच में कैंसिल लिख दिया, दिस वे. तो समझ में आया क्या? ओके, नाउ मी अंडरस्टैंडिंग अबव, लेट्स वी आर रेडी फॉर गवर्नेंस. चलिए शुरू करते हैं. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम एथिक्स, है ना. We have also seen syllabus, what are the sources, and we established all the context, है ना, and we will maintain this flow. Let's break down our syllabus. Let's break down our syllabus. First topic you have to write from here, right? अब यहां से लिखना शुरू करना है थोड़ा थोड़ा. First topic is structure of government of India. लिखिए, मतलब लिखते ही चलिए, और वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन दिस टॉपिक वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज मिनिस्ट्री, व्हाट इज डिपार्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट. ओके, लेट्स डू दिस वे कि पहले मैं समझा देता हूं, फिर आई विल गिव यू टाइम, तब आप लोग लिख लेना, ठीक है? तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ये समझ में आई फिर लिखें. तो इन दिस फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी विल स्टडिंग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, डज इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेसी, अगर मिनिस्ट्रीज का साइज बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज इन डिपार्टमेंट्स, दीज डज इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेसी मींस इंक्रीज इन एफिशिएंसी. वी विल बी स्टडिंग दिस एस्पेक्ट कि अगर ज्यादा मिनिस्ट्रीज बना दिए, ज्यादा डिपार्टमेंट बना दिए, उससे क्या एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्या? विल बी स्टडिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक. इन नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट. गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल दो स्कीम्स, all those initiatives taken by government for the development in various sectors, for example education sector, for example industrial sector, infrastructure sector, education sector, health sector. In all those areas, whatever policies government has made, what are issues in that, वहां पर issues क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे. Because our beloved Prime Minister Modi has this weakness that he can't sleep without releasing one scheme per day, right? एक स्कीम तो आ ही जाती, correct? And he has released many schemes. For example, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, गो टू हेल इंडिया, सॉरी. So all these schemes have been initiated by our beloved Prime Minister Modi ji for the welfare of the citizens. But why all these schemes, in spite of having hundreds of the schemes, why all these schemes are not effective on the ground? Right? We still have 270 million population living below poverty line, right? Women do not have enough representation in the Lok Sabha, right? Even having lot of schemes, lot of women empowerment schemes. So what are the problems? The problem समझेंगे तभी तो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे और रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे, समझेंगे कहां पर काम कर सकते हैं, करेक्ट? तभी तो यू विल बी बिकमिंग, व्हेन यू विल बी बिकमिंग ब्यूरोक्रेट, तब आपको समझ में आएगा अच्छा इस प्रॉब्लम में तो, इस स्कीम में तो ये प्रॉब्लम थी, है ना, इस एस्पेक्ट में मुझे काम करना चाहिए, करेक्ट, है ना, तभी तो पॉसिबल है. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, राइट? देन नेक्स्ट टॉपिक, that is transparency and accountability, we have already studied as a part of good governance in your ethics syllabus, but here also we will be doing in greater detail, that is e-governance, RTI, social audit, whistleblower protection act, citizen charter. All these topics will be studying, and even corruption, your favorite topic, corruption, कि आपको
करप्शन कैसे होता है, लोग कैसे करप्शन करते हैं, एंड हाउ टू प्लग द लूप होल्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. एंड नाउ टेल मी, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, सेलेक्ट होके जाते हैं, फर्स्ट पोस्टिंग कैसी होती है, किस पोजीशन पे? हाँ, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर सब कलेक्टर कहते हैं. एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पोजीशन मैम? कैबिनेट सेक्रेटरी. तो दैट इज व्हेन यू इंटर इनटू द सर्विसेज, you join as a sub collector, sub divisional magistrate, right? And when you finish at the end of your service, you will be having the position of cabinet secretary. It will take around 35 years to reach this position. 35 साल लगते हैं वहां पहुंचने में. We will be doing in one class. कि हर एक पॉइंट पे जब आपका प्रमोशन होता है, जब आप कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिविल सर्वेंट? हमारा क्या रोल होता है? गिविंग मेरिटोरियस, रैशनल, इम्पार्शियल सजेशंस टू आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, राइट? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ऑल दीज आर आवर वर्क, है ना? यही काम होता है हमारा, राइट? तो दिस वी विल बी डूइंग इन दिस क्लास कि व्हाट आर आवर रोल्स, what are our responsibilities, and what we should do when we will be going into the system. We will be also seeing the examples from other bureaucrats as well. You have already studied them in your ethics syllabus, है ना? देखा है कि नहीं देखा? कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना? ऑपरेशन सोलेमानी किसने निकाला था? ओके, so next topic, developmental industry, NGO, SHG and civil society organization. NGO, SHG and civil society organization. This is the last topic we will be studying. So what is NGO? तो पता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प का मतलब क्या आता है? हाँ, They have the autonomy to manage. to those people whom nobody is helping. कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, so they have formed association to help themselves. अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है. फिर we will be understanding in greater detail. And civil society organizations. All these topics we are going to study. Correct? So first topic, write down structure of government of India. Structure of government of India. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड टॉपिक इज गवर्नमेंट. ये सिलेबस है हमारा जो हम लोग ने ब्रेक डाउन किया है. गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट. दिख रहा है क्या आप सभी को? मैम आपको दिख रहा है क्या? परफेक्ट. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट वेरियस सेक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू intervention and problems related to interventions. Next, topic is transparency and accountability, part of good governance. Here we are studying e-governance, RTI, social audit, Whistleblower Protection Act and Citizen Charter. लिख लिया? ये लिख लिया सिटीजन चार्टर तक. थोड़ा होल्ड करेंगे यहां पर. ई गवर्नेंस, आरटीआई, सोशल ऑडिट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट एंड सिटीजन चार्टर. So please hold for 2 minutes. During BC times, before Corona times, our Prime Minister used to go America multiple number of times.
multiple number of times before corona. Like in 2017, I guess he went to America approximately 10 times, more than he came to my home state, Madhya Pradesh. So that year he came only once, right? Now, whatever be the ism, capitalism or socialism, कोई भी ism हो, whatever be the ism, capitalism or socialism, only way through which the country can get that growth is investment. We all know that. And our prime minister is very very eager, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आए हमारे देश में. He is very very because he has best of the things. वो चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो ग्रोथ के रास्ते पे जाए. So whatever be the ism, capitalism or socialism, the only way country can grow is investment. That our prime minister know. So whenever he goes there, he tells to these businessmen कि come to our country, हमारे देश में आइए, we will give you red carpet welcome. We will give you red carpet welcome. Even before LPG reform 1991, before LPG reform, our prime minister then also they used to go to America, but asking for money for food. खाने के लिए कुछ पैसे दे दो भाई, या फिर खाना दे दो, probably sustaining. But now after 1991, this trend changed. Many of our PM go to the America for asking for the investment. And when our Prime Minister Modi told that we will give you red carpet welcome, this businessman replied that, Mr. Prime Minister Modi, that you always say that you will give us red carpet welcome, but when we come here, we don't see any red carpet welcome. We see only red tapeism. हमको क्या देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ red tapeism. There is a lot of bureaucracy. There is a lot of hierarchy. There are a lot of permissions I have to take. I have to take approximately 150 plus permissions from different ministries, different departments, as cited by economic survey. कि 150 plus ministries or departments में से हमको permission लेने में time लग जाता है, right? So a lot of red tapeism is there. So our Prime Minister told, he insisted, now please come, and I am making you assure that we are initiating one initiative, that single window clearance. At one instance, all your proposals will be cleared. So one initiative in the aspect of transparency and accountability. Now next topic is corruption. Have you written corruption? Oh, very good, nice. Role of civil services in democracy. Role of civil services in a democracy. Role of civil services in a democracy. And developmental industry, NGO, SHG, and civil society organizations. Civil society organization. Perfect. All of you have written, everyone at last. Sir, आपने लिख लिया इसको? Very good. Now write down this topic name, governance, and topic number 1, governance and good governance. So we will be taking with a lot of case studies, बहुत सारी case studies, बहुत सारे examples के थ्रू हम लोग समझेंगे एक एक टॉपिक को, एक पॉइंट को, है ना? तो first topic is governance and good governance. First topic is governance and good governance. Actually, this is a very good habit that we have put our shoes outside, है ना? This is very unusual for us, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर, क्योंकि it is like a temple for us, right? यही philosophy होगा, है ना? Very nice, very very nice. बहुत अच्छा लगा मुझे. So let us take the two cases. Let us take two cases, India and China.
India and China. After LPG reforms, LPG reform मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1991 में कुछ रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली $250 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन टोटल वी हैव गॉट 250, सर कितना? 250, ये डाटा आप कोट कर सकते हो एग्जाम में, है ना? तो हमेशा माइंड को एक्टिव रखना है कि $250 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड चाइना every year gets $300 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट every year। हर साल $300 billion का इन्वेस्टमेंट उसके यहां आता है, और हम एलपीजी रिफॉर्म के बाद वी हैव गॉट ओनली $250 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। बट द मोर, मतलब अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से देखेंगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड चाइना इज डिक्टेटरशिप, राइट? चाइना इज अ डिक्टेटरशिप, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, उनके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है, राइट? स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट द इन्वेस्टमेंट दैट वी एक्सपेक्ट, राइट? कुछ तो बात होगी, है ना? कुछ तो बात होगी, कुछ क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, क्यों हुआ? तो यूएन एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। द ओनली रीजन दे हैव साइटेड दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जीडीपी, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम, इट इज बिकॉज ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस हियर एंड गवर्नेंस देयर, वी विल स्टडी, बट फॉर टाइम बीइंग गवर्नेंस इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड एग्जाम्पल तो लिखते हुए चलेंगे क्योंकि ऑल दीज एग्जाम्पल्स बहुत ही दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड, है ना? तो थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलेंगे। ये हो गया, ये कैसे हो गया, है ना? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पजल्स फॉर अस, ये कैसे प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया? वी डोंट हैव इनफ इफिशिएंट, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। हमारे पास क्या नहीं है? अकॉर्डिंग टू यूएन एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, वी डोंट हैव इनफ इफिशिएंट, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। हमारे पास क्या नहीं है? We don't have enough efficient, inclusive and transparent government. Okay, so fair enough. अच्छा, तो ये बात है, इसलिए we need governance. Governance, not only governance, but we need good governance. हमें क्या चाहिए? सुशासन चाहिए, good governance, right? So that we can understand in the governance what are issues, और उनको हम rectify करके we can make that good governance. From governance to good governance. Perfect. यहां तक समझ में आया कि वी हैव टू एग्जांपल्स, इंडिया एंड चाइना। इंडिया आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म वी हैव गॉट approximately $250 billion of investment till now, and China has got $350 billion investment every year. They get $350 billion investment every year, but our country is democratic, there they have dictatorship. How is that possible? Even this example has been cited in NCERT as well. तो NCERT बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, you should read them, you should have good reading of them. So now next question to you, all of you, is what is administration? What is administration? आप लोगों ने पढ़ा होगा administration? Administration हाँ क्या होता है? बस इसको तोड़ने की कोशिश करो, add plus ministrate पढ़ाया होगा? नहीं पढ़ा? मीन्स टू सर्व, लिखेंगे थोड़ा सा। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, उस एडमिनिस्ट्रेशन की हेडिंग डाल दी आपने, वेरी गुड। उसके नीचे लिखेंगे द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेट। उसके आगे लिखेंगे एड प्लस मिनिस्ट्रेट, उसके आगे एरो लगा के टू सर्व, टू सर्व
इन द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड इन द पब्लिक इट्स अ वेलफेयर ऑफ पीपल. वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट? सो whether it is a private organization or it is a public organization, the objective is to serve. The private होगा तो क्या होगा? For the profit maximization, and in public it is very good. Now next question is bureaucracy. Bureaucracy. मैं ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने पीवाईक्यू में प्रीलिम्स में ही पूछा हुआ है, तो लेट्स मेक इट इंक्लूसिव. ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या मतलब होता है? Very good. They help in policy implementation. Very good. Very, very good. So they are group of officials who are non-elected, and they help in policy implementation. We will write that. लिखिए ब्यूरो प्लस क्रेसी. ब्यूरो प्लस क्रेसी. ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो प्लस क्रेसी. ब्यूरो का मतलब होता है टेबल और डेस्क. टेबल और डेस्क. और क्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ governance. A system of governance. That means those persons, those group of officials who are sitting on another side of table and are helpful in policy implementation, right? So we will write down that, I'll write that in simple terms, you can say that bureaucracy refers to bureaucracy refers to body of government officials who are not elected, but form an administrative policy making group. Full stop. In old times, bureaucracy was referred to a government administration which was formed by non-elected officials and run by departments that are employed by them. Now this question was recently asked in UPSC. In context of India, which one of the following is characteristic appropriate for bureaucracy? First option was an agency for widening the scope of parliamentary democracy. Second was agency for strengthening the structure of federalism. Third option is agency for facilitating political stability and economic growth. And last option is an agency for implementation of public policy. How many of you are for option 1? किसी को लगता है option 1 सही है? Option 2, agency for strengthening the structure of federalism. Anyone? Third, agency for facilitating political stability and economic growth. Anyone? कोई तो होगा जिसको लगता होगा ऐसा. Last option is agency for implementation of public policy. How many of you think this is the option? Okay. So these are bureaucracy. Bureaucracy is
एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसको एक बॉक्स के अंदर लिख लेंगे, ब्यूरोक्रेसी एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और आगे डाल देंगे यूपीएससी पीवाईक्यू, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। An agency for implementation of public policy. हम हो गया, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर डन। तो नाउ ये हमें समझ में आ गया ब्यूरोक्रेसी क्या है ना, in the simple terms we have already studied in ethics as well, but now this governance. Now governance, suppose if there is no rule of law, अगर rule of law है ही नहीं, if there is no rule of law, मान लो कल से, सर आपने नाम बताया था अपना विशु, तो विशु अगर मान लो कल से रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई, दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, कोई कानून ही नहीं है, आप कुछ भी करो कोई पकड़ेगा नहीं, है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ कानून है ही नहीं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो व्हाट कैन यू थिंक ऑफ, कि क्या क्या आप कर सकते हो, गुड थिंग और बैड थिंग, क्या क्या कर सकते हो इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी द इनोवेशंस। क्या सर क्या कर सकते हैं, विशु क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे आप, फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं करेंगे ये कैसे हो गया, कुछ तो करेंगे ही, रूल ऑफ लॉ नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, हाईली एथिकल पर्सन, ओके। तो दुर्गा कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन पता नहीं अभी इतनी सारी चीजें दिमाग में आ रही है। हाँ, मिसयूज ऑफ पावर इन एग्जांपल्स लाइक, वेरी गुड इनोवेशन। एनीवन एल्स? बैंक ही लूट लेंगे, प्रॉब्लम ही खत्म। सर आपका कुछ है ओपिनियन? मिसयूज ऑफ पावर में क्या, मिसयूज ऑफ पावर तो सब करेंगे, मतलब देखो कैसे एकदम, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ अच्छा, ये तो बहुत छोटे लेवल का हो गया। Anyone else? So this same thing happened. You will understand. कुछ बोल रहा है क्या? नहीं ना? So the same thing happened in New Orleans city. मतलब this is a case study, है ना? और उससे समझते हैं कि क्या हुआ वहां पर, लोगों ने क्या किया। In New Orleans cities, there was hurricane named Katrina. Katrina Kaif नहीं. There was a hurricane named Katrina. So this hurricane came and there was lot of dust. This is the city, New Orleans in Northern America. यहां पर क्या हुआ, हरिकेन आया जिसका नाम था कटरीना। तो अब इस हरिकेन में जब ये आता है तो हर जगह धुंध हो गया, हर जगह धुंध हो गया, और क्या हुआ कि सारा पावर कट हो गया, एंड देयर वाज नथिंग विजिबल, कुछ भी विजिबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधकार छा गया हर जगह, है ना, हर जगह अंधकार छा गया। So now what these people started doing, they started after some time, उन्होंने लगा कि अब तो कोई देख भी नहीं रहा है हमें, है ना, so what they started doing, they started murdering those, मतलब जिनके साथ अपना आपसी बैर था उनको उन्होंने मर्डर करना शुरू किया। फिर उसके बाद ये तो हरिकेन ही लिख दिया, लूटिंग, वायलेंस, रेप्स एंड चाइल्ड रेप्स, दीज वर वेरी वेरी प्रिवलेंट इन द न्यू ऑर्लियंस। अगर ये केस स्टडी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रेप्स, मर्डर हुए, है ना, एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रेप्स एंड मर्डर हुए। कोई याद कर पा रहे हो, किसी फिलोसोफर को याद कर पा रहे हो यहां पर? थॉमस हॉब्स पढ़ा है, क्या कहता है ह्यूमन नेचर के बारे में? थॉमस हॉब्स कुछ तो कहता है, पढ़ा तो होगा ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर में
टॉपिक पढ़ा होगा थॉमस हॉब्स, दैट इज फिलोसोफर थॉमस हॉब, ही सेज दैट मैन इज इनहेरेंटली नेगेटिव, वेरी वेरी ब्रूटिश नेचर। कहा था उसने कि बहुत ही ब्रूटल होता है मैन, उसको आप थोड़ी सी पावर दे दो वो क्या कर बैठेगा। मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस इज टू गो टुवर्ड डिस्ट्रक्शन, है ना, अपने आप को ऐसा चीज करेगा कि मतलब ऐसी पॉलिसीज बना देगा, ऐसा स्कीम्स बना देगा, ऐसा कुछ कर देगा वो जो कि खुद के लिए डिस्ट्रक्टिबल तो होगा ही, वर्ल्ड के लिए भी होगा। करेक्ट, इट इज विजिबल ऑल्सो, है ना, विजिबल फ्रॉम द केस स्टडी एज वेल। तो ये समझ में आया कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड इंट्रोपी। वी विल राइट, थोड़ा सा लिखते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहां तक लिख लिया था हम लोगों ने? हाँ, तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी सोसाइटी, natural tendency of any society is to move toward entropy, ब्रैकेट में लिखेंगे, moving toward ब्रैकेट में moving toward anarchy and destruction, anarchy and destruction, next point लिखेंगे, human beings are always influenced by self-interest. Human beings are always influenced by self-interest. This self-interest can easily, नोट्स अच्छे से बनाना। देखो, आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम, प्लीज मेक दीज नोट्स वेरी, क्योंकि आप ये मत कर देना कि मैं घर जाके एक अच्छे से लिखूंगा, ये भी बहुत सारे लोग की हैबिट होती है ना। यूज दिस टाइम वेरी वेरी वाइजली, आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए, यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर अगर टाइम यूज करना होगा तो हम प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे, है ना। हम लोग क्लास में इतनी बार मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, सारी चीजें आपकी टिप्स पे हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, घर जाके वहां पर टाइम का और अच्छे से यूज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, राइट। सो प्लीज डू नॉट डुप्लीकेट दीज एफर्ट्स। कहां तक लिखा हम लोगों ने? दिस सेल्फ इंटरेस्ट कैन easily transform itself into selfish interest. This self interest can easily transform itself into selfish interest, full stop. It can lead to exploitation. It can lead to exploitation, manipulation, destruction. It can lead to exploitation, manipulation and destruction of the society, destruction of the society. So we are from inside, according to Thomas Hobbes, we are like this, है ना। हमें पता है कि अगर बस वो टाइम मिल जाए तो तुरंत हम लोग क्या करें, कुछ निगेटिव ही चीज करने जा रहे हैं, है ना। कभी खाली बैठ के देख लो, दिमाग में इतने सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, कि नहीं होगा यूपीएससी तो क्या होगा, क्या करेंगे, है ना। बहुत सारे थॉट्स आते हैं इवन बिफोर एग्जामिनेशन, हर टाइम पे। अरे ठीक है यार, देयर विल बी ऑलवेज अ टू टेम्पटेशन, आई ऑलवेज से दैट बिटवीन बी एंड डी, बिटवीन बर्थ एंड डेथ, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज सी, यू हैव चूजिंग एबिलिटी, राइट। सी, चूजिंग एबिलिटी, इन एवरी मोमेंट यू आर चूजिंग समथिंग, राइट और रॉन्ग। या तो आप अपने करियर के लिए एक राइट चीज चूज कर रहे होगे, हर मोमेंट पे एक राइट चीज चूज कर रहे होगे, या फिर एक रॉन्ग चीज चूज कर रहे होगे। अगर उस लेवल पे आप पहुंच गए तो आपका यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। कि आप हमेशा यू आर प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं, ना कि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी, टू प्रोब।
आपका माइंड क्या है? क्यूरियोसिटी है। मैं एथिक्स के एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपका हो गया है। तो आई एम स्टैब्लिशिंग दोस फ्लो, कि वो फ्लो मेंटेन रहे। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ाई होगा, टू प्रूव, क्यूरियोसिटी माइंड, जिज्ञासु वाला मन। तो हमेशा आप ऐसी चीज चूज करो जो आपके करियर गोल के लिए फ्रूटफुल हो। करेक्ट है ना? क्योंकि देखो, हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग द नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट, मतलब कि अभी ये प्रीलिम्स देंगे? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, सभी लोग देख रहे हैं, है ना? तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है ना? तो यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, है ना? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि कृष्णा सेज इन भगवद गीता, कहते हैं कि अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना, अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना। दैट मीन्स दोज हु आर fearful, ओ अर्जुन, दोज हु आर fearful and those who are hard working, for them nothing is impossible। मतलब अभी भी अगर आप शुरू कर रहे होगे, तो भी अगर मेहनत करोगे, पूरा उस लेवल पे पहुंच गए कि आपकी चॉइसेस, हर एक चॉइस आपकी ऐसी बन रही है कि आप सिर्फ गोल की तरफ जा रहे हो, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, अभी भी पॉसिबल है। बट कंटेंट तो है, लेकिन इंटेंट नहीं है। अब इंटेंट की कमी है, उसको फुलफिल करना है ना? तो क्या करना है? कृष्णा ने क्या कहा है? अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना। हार्ड वर्किंग और जो फियरलेस होते हैं, जो एकदम मेहनती होते हैं, जो साहसी होते हैं, उनके लिए कुछ भी चीज अप्राप्य नहीं है। सो inside, from inside we are like this, we are negative, and natural tendency is to move toward anarchy and destruction. So to ensure survival and sustenance, to ensure survival and sustenance of society for longer period, we need governance, है ना? कि कुछ चीजें मेंटेन हो पाए। टू इंश्योर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी, एरो करके लिख लेंगे, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी फॉर लॉन्गर पीरियड इज वाई वी नीड गवर्नेंस। दैट्स वाई वी नीड गवर्नेंस। की नेचुरल टेंडेंसी इज टू मूव टुवर्ड एनार्की एंड डिस्ट्रक्शन, एंड to ensure survival and sustenance of society for longer period, we need governance. Governance. It has been governance, a Greek word kuber now. Greek word kuber now, just for your general knowledge. ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है और कभी लिखने को मिलेगा भी नहीं आपको, है ना? So just for your own knowledge, kuber now, to steer the affairs of the state, to steer the affair of the state, मतलब झकझोर देना, स्टेट के अफेयर्स को झकझोर देना, मतलब टू मैनेज करना, ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाए। करेक्ट सर? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। सो ग्रीक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कुबेर नाउ, टू स्टीयर द अफेयर्स ऑफ स्टेट, दैट इज what government is doing to manage the affairs of state, what government is doing to manage the affairs of state, be it your birth registration, be it your death registration, from your birth to death, everywhere there is governance। आपको हर जगह देख रहे होंगे कि मतलब रोड बन रही है, कुछ ना कुछ तो सरकार कर ही रही है। आप देख रहे होंगे बिजली आ रही है ना? इट्स ऑल गवर्नेंस का ही तो पोर्शन है। वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग टू मैनेज, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इज व्हाट? गवर्नेंस। वेरियस पॉलिसीज, वेरियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज टेकिंग, ऑल दिस इंक्लूड्स गवर्नेंस। समझ में आ रहा है सर? कोई डाउट? ओके, ये समझ में आया यहां तक? फ्रॉम बर्थ टू डेथ एवरीवेयर देयर इज गवर्नेंस, फ्रॉम पॉलिसीज, इनिशिएटिव। लेकिन पार्ट यहां तक लिख लिया, थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप में थोड़ा लिखते हुए चलेंगे, ताकि ये एग्जांपल्स मिलते नहीं है इजीली। Okay, I have been told that at 10:30 I have to give break. So you require break or we can move forward. या तो फिर 15 मिनट ब्रेक लेके we can come back. ठीक है ना? ठीक है, वी आर टेकिंग 15 मिनट ब्रेक फ्रॉम हियर। 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10:30 हो गए। वी आर टेकिंग 15 मिनट ब्रेक फ्रॉम हियर। वी विल बी मीटिंग एट, आई एम टेलिंग यू 10:45, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पुणे गया
तो वहां आधे घंटे का ब्रेक बोलता था तो लोग 1 घंटे के बाद आते थे। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिड्यूस्ड इट टू 15 मिनट्स, ताकि कम से कम आधे घंटे में तो आप लोग आ ही जाओ, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल मीट आफ्टर ब्रेक।